is Fetcher here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 Social Science History portion with chapter number 7, Ashoka, the emperor who gave up a war, right? So till now we have discussed about the Kalinga war, right? In which the bloodshed that was seen by the Ashoka. Afterwards he has decided that from on now I am not going to fight any war. Even he has inscribed so many inscriptions that mention that the son or a succeeded the next generation who will come on to rule, right, will not going to fight with any other ruler, or will not going to fight with another king or another rulers. Why? Just because the situation, just because the scenario he has seen at the Kalinga war, the bloodshed of his soldiers, as well as he has thought emotionally that there were lots of people who were dear to some other persons, that might have possibility that someone has lost their father, lost their grandfather, uncle, right, or honor, master, right, who were very kind to their relatives or their neighbors or their successors, right? So such things already we have talked or discussed in the previous video. We will start with a new topic and afterwards whatever the message that Ashoka has inscribed on inscriptions that belongs to one particular word that is called Dhamma, right? So here in this video we are going to discuss about the Dhamma, right? So let's start with it. What was Ashoka's Dhamma? Ashoka's Dhamma didn't involve worship of a god or performance of a sacrifice. यानी usually Dhamma means it's a Sanskrit term. धर्म का वर्ड क्या लिया गया है एज अ प्रकृति, मीन्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज होता है धम्मा, राइट? लेकिन ये जो धम्मा है मीन्स जो धर्म है वो धर्म ये नहीं है कि आप किसी गॉड की क्या करो, वर्शिप करो या फिर कुछ सेक्रीफाइस करो, मीन्स कि पूजा पाठ करो, ये वो धर्म नहीं था। तो ये धर्म कौन सा था? लेट मी सी। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. यानी जैसे एक पिता का धर्म ये होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी बातों को क्या करे, समझाए, सिखाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अच्छी बातों को अपने बच्चों तक पहुंचाए। तो कुछ उसी तरीके से बुद्धा ने अपनी जो टीचिंग्स दी थी वो टीचिंग से काफी हद तक अशोका क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, और फिर वही टीचिंग्स को उन्होंने आगे लोगों की तरफ या फिर लोगों को बतलाना स्टार्ट किया। इसी वजह से ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस अशोका के पाए जाते हैं उनमें ज्यादातर टीचिंग्स किसकी पाई जाती है? बुद्ध की ही पाई जाती है। Now, there were a number of problems that troubled him. People in the empire follow different religions and this sometimes lead to conflict. यानी जो एक धम्मा है, यानी लोगों के बीच में क्या करना है, पेशेंस क्रिएट करवाना है, फ्रेंडली यानी ब्रदरहुड क्रिएट करवाना है, अब एक दूसरे के दिलों में लोगों के प्रति क्या क्रिएट करना है, प्यार क्रिएट करना है, यानी सब लोग अच्छी तरीके से एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके जिए, ये सारा का सारा क्या करना था? अशोका को करना था। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वो टाइम की बात है कि जब किंग अपनी यानी पोजीशन को बतलाने के लिए वो कितने ताकतवर है, पावरफुल है, ये सारी चीजों को बतलाने के लिए वो क्या करते हैं, सिर्फ इस चीज को बतलाने के लिए देखिए वो कितने ताकतवर है, इस वजह से भी कई मरतबा वो क्या करते थे, दूसरे रूलर के साथ फाइट करते थे, राइट? सो ये वो टाइम की बात है कि जब ये जो मेंटेलिटी चल रही थी तब अशोका क्या करना चाहते थे, डेट के लोगों को ये समझाना चाहते थे डेट कि हमें वॉर लड़ना नहीं है, राइट? सो फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो इट्स अ रियली बिग थिंग दैट अशोका हैज इम्प्लीमेंटेड, राइट? नाउ
और ये सारी चीजें करना उनके लिए आसान नहीं था। क्यों नहीं था? कि काफी सारे यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग उनके यानी दरबार में, उनके किंगडम में थे। राइट, लेट वी सी। Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. यानी जब अशोका अपना धर्म यानी धम्मा का जो टीचिंग्स है वो सब लोगों के बीच में जब फैलाना चाहते थे तो कौन कौन सी मुसीबत उनके सामने आई। देन नंबर 1, राइट, कि उनके जो दरबार में रहने वाले जितने भी लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। एज वेल एज कुछ लोग ऐसे थे जो एनिमल्स को क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। मीन्स कि यहाँ पे उस चीज का यानी क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि काफी सारे लोग एनिमल्स को क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं है, यानी उनको सेक्रीफाइस करते नहीं है, जिनसे उनकी क्या जुड़ी हुई है, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। सो एज वेल एज स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, यानी जो गुलाम होते, जो सर्वेंट्स होते, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। जहाँ पे वो ये टीचिंग्स लेके चले थे कि स्लेव्स और सर्वेंट के साथ आपको क्या करना है, अच्छा सलूक करना है, वहाँ पे वो लोग सर्वेंट्स और स्लेव के साथ क्या करते थे, बहुत ही बुरा सलूक करते थे, मींस इल ट्रीटेड। बिसाइड्स, इसके अलावा भी जो फैमिलीज थे, फैमिलीज के बीच में क्या चलती रहती थी, क्वारल्स, यानी वो हमेशा यानी कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से उनकी फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, जो नाउअडेज भी आप लोगों को शायद पता होगा दैट होता है। एज वेल एज क्वारल्स अमंग नेबर्स, यानी नेबर्स के बीच में भी कई मर्तबा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेके भी यानी एक दूसरे के साथ वो क्या करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, तो फिर अशोका को लगा दैट कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना, हल करना, ये किसकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। So he appointed officials known as the Dhamma Mahamatta. So underline this word, who are the Dhamma Mahamatta? Dhamma Mahamatta means कि ये वो ऑफिशियल्स थे कि जिन्होंने जिन्हों को अशोका ने क्या किया था, अपॉइंट किया था। किस वजह से? दैट अशोका का जो धम्मा था, जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो टीचिंग्स थी, वो टीचिंग्स लोगों को क्या करने के लिए, बतलाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को हायर किया था। सो उन लोगों को धम्मा महामत्ता कहा गया है। तो वो क्या करते थे, वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जो लोगों को क्या सिखाते थे, धम्मा सिखाते थे। मींस कौन सा, देखिए वो जितने भी प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं, देखिए एक भले ही कोई डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को एक दूसरे के रिलीजन्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो नेबर्स हैं उनको एक दूसरे के क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए। जो एनिमल्स बुरी तरीके से सेक्रीफाइस हो रहे हैं, जिन लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, उन सेंटिमेंट्स को क्या करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए उन चीजों को क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। एज वेल एज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, वो भी एक इंसान है, उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। Now, besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who couldn't read it themselves. यानी जैसे कि nowadays तो बुक्स हैं, राइट, कि जिसमें अच्छी टीचिंग्स मिल जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उस टाइम की बात है कि जब बुक्स नहीं थी तो वो क्या करते थे, देखिए जो हार्ड सरफेसेस होते हैं जैसे कि स्टोन्स, पिलर्स, तो उनके ऊपर अपने जो इंस्क्रिप्शंस है, यानी उनके जो ऑर्डर्स है, उनकी जो टीचिंग्स है, वो क्या करते थे, इंस्क्राइब करवाते थे, लिखवाते थे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिशियल्स है, वो ऑफिशियल्स राजा ने नहीं भेजे, ये सिर्फ अपनी तरफ से चीजों को क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं, तो ऐसा प्रूफ भी वो क्या करते थे, अशोका की जो टीचिंग्स थी वो लोगों के सामने रख देते थे। तब जो लोग होते वो उनको देख के क्या हो जाते, यानी उनको पता चलता है कि सही मायनों में ये चीज किसने लिखी हुई है, एक राजा ने लिखी हुई है। अगर राजा इस चीज के बारे में हमें बता रहा है, देन हमें भी इसको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। नाउ Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands। और अशोका ने जैसे उन्होंने धम्मा महामत्ता ऑफिशियल्स को क्या किया था, अपॉइंट किया था, उसी तरीके से काफी सारे मैसेंजर्स मींस कि जो धम्मा का जो मैसेज है
वो नॉट ओनली उनके ही रीजन में या फिर उनके ही एरिया में, लेकिन दूसरे जो डिस्टेंस लैंड है कि जहां पे भी काफी सारे राजा उस टाइम पे रहते थे जो एक दूसरे के साथ वॉर करते थे, जिनमें न जाने कितने यानी बेकसूर लोगों की क्या जाती थी, जान जाती थी। तो उस टीचिंग्स को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स को कहां पे भेजा है, ऐसी जगहों पे भेजा है। सो ऐसी सारी लैंड में कौन कौन सी लैंड आ जाती है, सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, राइट, एंड श्रीलंका। तो ये जितने भी प्लेसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको क्या मिल सकते हैं, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब किए गए हैं वो भी शायद इन जगहों पे आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं वहां के म्यूजियम्स में, राइट। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस ऑन मैप 6, राइट, पेज नंबर 76 एंड 77। सो आप इन चीजों को देख सकते हैं, ये जो जितने भी प्लेसेस हैं वो पेज नंबर 76, 77 पे दिए गए मैप के ऊपर आप आइडेंटिफाई में उसको मार्क कर सकते हो। He built roads, dug wells and built rest houses। और ना ही उन्होंने सिर्फ अपने मैसेजेस को ही यानी क्या किया था, कन्वे किया था, साथ साथ में उन्होंने काफी सारे रोड्स भी बनवाए हैं। डग वेल्स यानी पानी की जो जरूरत होती है उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए उन्होंने काफी सारे वेल्स भी खुदवाए हैं। एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस, जहां पे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते, रास्ते में जब कभी उन्हें आराम करने की जो जरूरत आती तो उन्होंने काफी सारे रेस्ट हाउसेस भी बनवाए हैं। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals। साथ में यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाई है, जिनमें ना ही सिर्फ ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए भी बनवाई है, राइट। सो काफी सारे वर्क्स है, राइट, कि जो अशोका ने किए हैं। सो द रीजन वाई ऐसे रूलर के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने वॉर को तो छोड़ दिया, लेकिन वॉर छोड़ने के बाद भी काफी अच्छे मैसेजेस लोगों तक उन्होंने पहुंचाए हैं, राइट। सो नाउ अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट, अशोका's मैसेज टू द सब्जेक्ट, यानी उन्होंने जो टीचिंग्स बतलाई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं या फिर कुछ मैसेजेस दिए हैं। लेट मी डिस्कस इट। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when the children are born, or when they go on a journey। यानी यहाँ पे variety of rituals यानी काफी सारे लोग हैं कि जब घर में अगर किसी की क्या होती है, यानी अगर बच्चा पैदा होता है, राइट, तब कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं, राइट। जब मैरिजेस होते हैं तब काफी सारे रिचुअल्स होते हैं। अगर यानी कुछ ऐसे ओकेजन्स आ जाते हैं, राइट, जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तब काफी सारे ऐसे रिचुअल्स आ जाते हैं। मींस लेट मी टेक एन एग्जांपल, कि अगर कभी घर में कोई बीमार हुआ है, इनिशियल स्टेज पे ऐसा कहा जाता है कि इसको नजर लगी हुई होगी, राइट। देन वो क्या करते हैं, यानी नींबू को फिराना, मिर्ची को फिराना, राइट, और उस तरीके से उसकी जो नजर है वो नजर को उतारते हैं। सो यू कैन से इट्स अ वन काइंड ऑफ रिचुअल, राइट। अगर मैरिजेस होते हैं तब भी यानी जैसे कि नारियल को हाथ में देना, राइट, कोकोनट को हाथ में देना, फिर जैसे पीठी करना, राइट। सो ऐसे कुछ रिचुअल्स है वो करते रहते हैं, राइट। एज वेल एज जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, देन बॉर्न होने के साथ ही यानी इनिशियल स्टेज पे कुछ मीठा उनको क्या करते हैं, उनकी यानी तंग पे रखते हैं, राइट। और डिफरेंट यानी कास्ट में या फिर डिफरेंट रिलीजन में ये डिफरेंट रिचुअल्स भी हो सकते हैं। देन वही रिचुअल्स की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है करके उन्होंने अपने जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए कुछ पॉइंट्स है वो दिए हैं कि जब आदमी या फिर जो पर्सन बीमार होते हैं या फिर काफी सारे लोग अपनी तरफ से डिफरेंट रिचुअल्स में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, जो आमतौर पर कुछ न कुछ ओकेजन्स पे क्या होता है हमारे सामने आते रहते हैं। सो these rituals are not useful। तो कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो यूजफुल नहीं है। If instead people observe other practices, this would be more fruitful। What are these other practices? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिचुअल्स करते हैं, इन सब में कुछ रिचुअल्स ऐसे भी हैं जो निहायत यानी बेनिफिशियल है, राइट, और उससे लिटरली काम होता भी है, बट और वो कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। दैट डिपेंड ऑन अ पर्सन। लेकिन वहां पे अशोका का मानना है दैट कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो बिना वजह ही किए जाते हैं, उनकी इन जगहों पे कोई जरूरत ही नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज ये कर लेते हैं
अगर मैरिज हो रहे हैं, राइट, अब मैरिज हो रहे हैं देन उसको जोर शोर से करना, बहुत सारे लोगों को बुलाना, पैसों की बर्बादी करना, राइट, और कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो बिना यानी फिजूल ही हम क्या करते हैं करते हैं। अब इनमें ऐसा है कि काफी सारे लोग एट द सेम टाइम ऐसे होते हैं कि जिनको बेचारों को खाने का क्या नहीं मिलता है, एक टाइम का खाना भी मिलता नहीं है। अगर वही यानी पैसे ऐसे लोगों के लिए क्या किए जाए, खर्च किए जाए, देन वो कितना यानी अच्छा काम होगा। सो क्वाइट सेम वे यहाँ पे ऐसी कुछ रिचुअल्स के बारे में कौन कह रहे हैं, अशोका कह रहे हैं कि कुछ रिचुअल्स तो बिना वजह ही है, यानी वो यूजलेस है। सो उसके जगह पे कोई जो बेनिफिशियल रिचुअल्स है वो हमें करने चाहिए। लेट मी सी, दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्टिंग वन्स एल्डर्स, यानी कई मर्तबा ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं, अगर उसके यानी दिल से, उसकी रूह से अगर हमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो फिर जब हम बीमार होते हैं या फिर हमारे लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्हीं आग की वजह से या फिर इनकी ही बद्दुआ की वजह से होती है। सो द रीजन व्हाई दैट कि हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट हैव टू जेंटल और वी शुड हैव टू जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट, रिस्पेक्टिंग वन्स एल्डर्स, यानी बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स उनको क्या करना चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट कर या फिर उनके साथ उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, और अल्लाह ने और ऑलमाइटी ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं उनके साथ हमेशा हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, यहाँ पे ब्राह्मण्स लिखे हैं मींस ब्राह्मण, जैसे कि हमने वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा था दैट दोज वर प्रीस्ट, मींस के जो गुरु है, शिक्षक है, टीचर्स है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस्ताद है, राइट, आलिम है, राइट, कि जो हमें कुछ न कुछ चीजें क्या करते हैं, सिखाते हैं, उनको क्या देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, राइट। It is both wrong to praise one's own religion or criticize another, यानी वो बिल्कुल ही यानी गलत है, चाहे कोई किसी दूसरे रिलीजन को क्या करे, क्रिटिसाइज करे कि आपका रिलीजन बहुत ही खराब है, आपका रिलीजन यानी ऐसा है वैसा है, ये कहना भी इतना ही गलत है जितना ये कहना है कि मेरा रिलीजन क्या है, सबसे सुपीरियर है, यानी वो भी इन दिस सेंस, यानी हर एक रिलीजन में फॉलो करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, एक दूसरे को एक दूसरे के रिलीजन की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ वन प्रेज व्हाइल क्रिटिसाइजिंग others, one is actually doing greater harm to one's own religion, अगर कोई इंसान अपने खुद की यानी रिलीजन को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, और सेम टाइम सामने वाले के रिलीजन को क्या कर रहा है, बुरा कह रहा है, तो अल्टीमेटली वो ये बतला रहा है कि उसके रिलीजन ने उसे ये सिखाया है कि वो किसी दूसरे रिलीजन को क्या करे, क्रिटिसाइज करे। सो वो दूसरे रिलीजन को नीचा नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली अपने खुद के रिलीजन को क्या दिखा रहा है, नीचा या फिर छोटा कर रहा है। सो इट्स आवर ड्यूटी एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि हमें दूसरे रिलीजन को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Therefore, one should try to understand the main idea of another's religion and respect it. तो हर रिलीजन कुछ न कुछ अच्छे यानी चीज़ों को सिखाते हैं, तो उन अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और इस वजह से दूसरे रिलीजन को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट। Now, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote his edicts, means instructions, still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them. यानी काफी हद तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अशोका का एक मैसेज है वो कहाँ पे यानी लिखा है या फिर हमेशा कहते रहते हैं दैट कि अशोका ने जो मैसेजेस लिखवाए हैं वो मैसेजेस इतनी सिंपल वे में है और इतनी अच्छी वे में हमारे सामने है दैट कि आज भी हम यानी भले ही उन्होंने 2300 और 600 इयर्स पहले 2600 इयर्स पहले लिखे थे, लेकिन आज भी मॉडर्न डेज में भी उनकी ये टीचिंग्स क्या है, बहुत ही यानी सच साबित हो रही है। Identify parts of Ashoka's message that you think are relevant today. As just now I have talked that कि
सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस की। तो जो भी मैंने डिस्कस किया है वो आप लोग नाउअडेज भी काफी सारी जगह पे क्या कर रहे हो, देख रहे हो। सो लिटरली बहुत ही इजी वे में आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ 10 में से 9 चीज ऐसी है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो या फिर जो मैसेजेस इन्होंने बतलाए हैं वो मैसेजेस हमारी लाइफ में आज भी उस 9 जगहों पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक ठीक बैठ रहे हैं। अंडरस्टैंड? Now, below, right, the Brahmi scripts, most modern Indian scripts have developed from the Brahmi scripts over hundreds of years. Here you can see the later written in different scripts. यानी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की हम काफी यानी चैप्टर से बात कर रहे हैं, जैसे ऋग्वेदा और काफी सारे जो ग्रंथ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है क्या, राइट? तो काफी सारा ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, जिस तरीके से गुजराती, हिंदी इस तरीके से वही है। तो जो ब्राह्मी है, देवनागरी जो हिंदी है, बंगाली, मलयालम और तमिल, तो उसमें जो ए लेटर है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो यहाँ पे बतलाया, राइट? यू कैन सी, राइट? सो अर्ली ब्राह्मी में त्र की तरह लिखा जाता है, देवनागरी वो आप सब लोगों को पता ही है, राइट? एंड बंगाली, मलयालम एंड तमिल। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इफ यू वांट टू राइट सच alphabets, right? By find out by searching. Now, last here the topic elsewhere, right? यहाँ पे instructions regarding या फिर information regarding China वो आपको दी गई है, right? It's just information based, right? Nothing could be asked in the examinations. You can read it by your own just for your information, right? So the short descriptions of how the China wall was being constructed, right? And who was the ruler, right? Who has started it,